Good morning, students. Hope you are alive and kicking. Today I am going to take your English class. I know you have very well studied your previous chapters. So let's start with the next one. The Sound of Music by Deborah Colley. Sound of Music. The Sound of Music is about a girl, Evelyn Glanny, who doesn't have hearing aids but still try to feel music through her other senses. So, Evelyn Glanny is the protagonist of this chapter. What is the meaning of protagonist? Protagonist means the main leading role of the chapter, around whom the story revolves. So this chapter, the story is of a girl named as Evelyn Glanny, who was special, who doesn't have hearing aids. Hearing aids नहीं थे उसके पास, but still tried to feel music through her other senses. She couldn't hear, but she could listen. Do you know the difference between hear and listen? Hear means when automatically a voice or noise comes to our ears, then that is hearing. But what is listening? Listening means when we want to hear, when we are keen to hear that. Like suppose you are in your classroom and you are paying attention on your teacher, then that is listening. But if you are in classroom, you don't want to listen, your mind is diverted, but some noise, some voice is coming to her ears, that is hearing. So she didn't have hearing aids, but she could listen music through her other senses. She was a special child. Why a handicapped or disabled person is known as a special child? Why? There is a reason behind that. Special means when a child lost one of his senses, then his or her other senses become strong. She or he could see well, better than us. She or he could touch, smell, sense well, other than us. So she or he become special with her special senses. She couldn't hear but still had the ability to feel it because she was very enthusiastic to learn music. उसके पास ability नहीं थी सुनने की, but she had the ability to feel it, but she could feel the music because she was very enthusiastic to learn music. क्योंकि वो म्यूजिक को दिल से सुनना चाहती थी, म्यूजिक उसके दिल में था, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए उसको हेयरिंग एड्स की जरूरत नहीं थी. She could feel that from other parts of her body. Yes, she could feel from her feet, she could feel from her head, she could feel from her waist, she could feel from every part of her body if she couldn't feel from ears. So if she couldn't feel from her ears. So we will start, we will read this chapter and we will see how she became special and how without hearing aids she got so much awards. So let's start reading this chapter. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. ट्रेन प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था, बिजी टाइम था, लोग एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. A slight girl, slight means slight here means weak. A weak girl looking younger than her 17 years. 17 साल से भी कम लग रही थी. Was nervous, थोड़ी सी nervous थी, yet excited, फिर भी excited थी, because she felt the vibrations of the approaching train, क्योंकि उसको आती हुई ट्रेन की vibrations को वो feel कर पा रही थी. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. ये उसके लिए फर्स्ट डे था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. वो वहाँ पर फर्स्ट टाइम जा रही थी. एंड डॉन्टिंग मीन्स होता है थोड़ा सा घबराया होना, घबराई हुई भी थी क्योंकि वो अपनी टीनेज में फ्रेशर थी, टीनेज थी और स्कॉटिश फार्म से निकली थी बाहर जाने के लिए फर्स्ट टाइम. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf.
बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब जो दिल से बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहता है, लाइक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज, उसने बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया देन मोस्ट, बहुत ज़्यादा। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेफ भी थी, डेफ मतलब वो बहरी भी थी, स्टिल वो बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनना चाहती थी। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवलिन ग्लैनी की ये स्टोरी है। लॉस ऑफ हेयरिंग, उसकी सुनने की शक्ति, हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़त्म होती गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अकॉर्डिंग टू हर मदर, वो बाय बर्थ डेफ नहीं थी। उसकी मम्मा को भी ये कब पता चला, जब वो 8 साल की थी और वेट कर रही थी पियानो को प्ले करने के लिए। बट जब उसका नंबर आया, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, वो हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, उसकी मम्मा ने एकदम रियलाइज़ किया कि उसने सुना नहीं। सेज इजाबेल ग्लैनी, उसकी मम्मा का नाम इजाबेल ग्लैनी था। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, एवलिन ने अपनी डेफनेस को अपने टीचर से और अपने फ्रेंड से छुपाना शुरू कर दिया। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her टू आर स्पेशलिस्ट। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, 11th शी वॉज 11 ईयर्स की हुई, उसके मार्क्स जो थे वो डिटीरियोरेटेड, मतलब उसके मार्क्स कम होते गए। और उसकी हेड मिस्ट्रेस ने जो है उसके पेरेंट्स को अर्ज किया, उन्हें अपील की कि उसे एक अच्छे स्कूल में लेके जाओ, उसे एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ। It was then discovered that hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. It was then discovered, ये तब पता चला कि उसकी जो hearing थी was severely impaired, वो धीरे धीरे impair हुई थी, धीरे धीरे ख़राब हुई थी as a result of gradual nerve damage, because of उसका nerve जो था वो धीरे धीरे damage हो रहा था। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf, और उन्होंने एडवाइस किया कि उसको हेयरिंग एड्स ले दो जो स्पेशल होते हैं, ईयर्स में लगाए जाते हैं, और उसको एक स्पेशल स्कूल में ही भेजो। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक, सेज एवलिन, एवलिन को सब कुछ पिछड़ता हुआ नजर आने लगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, एवलिन इतनी कमज़ोर नहीं थी, वो हार मानने वालों में नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसने डिसाइड कर लिया, उसने डिटर्मिनेशन कर लिया, पक्का इरादा कर लिया कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी के दिखाएगी, और अपने इंटरेस्ट म्यूज़िक में अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखा। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को xylophone प्ले करते हुए देखा और उसने डिसाइड किया कि वो भी इसे प्ले करेगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist रोन फॉप स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि तुम जैसी लड़की इसे बिल्कुल प्ले नहीं कर सकती हो। बट परक्यूशनिस्ट होता है जो लाइक ताल वादक, जैसे ड्रम को बीट करना या तबला बीट करना, सो दीज आर नोन एज परक्यूशनिस्ट्स। उनमें से एक था रोन फॉब्स। उन्होंने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, एवलिन के पोटेंशियल को पहचाना। He began by tuning 2 large drums to different notes. उन्होंने 2 large drums बजाए और उसे बोला उसको पहचान करने के लिए। उन्होंने बोला एवलिन को, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कान से सुनने की कोशिश मत करना। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे महसूस करो लेकिन अलग तरीके से। सेज एवलिन, एवलिन ने बोला, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। सडनली उसने बोला, एवलिन ने, कि हाँ मैं रियलाइज़ कर पा रही हूँ, आई कुड फील, अब ड्रम की हायर बीट्स जो है वो अपने वेस्ट के अपर पार्ट से फील कर रही है, और ड्रम की लोअर बीट्स जो है वो अपने वेस्ट के लोअर पार्ट से, शी कुड फील दैट। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in the different parts of the body.
फॉब ने सारी एक्सरसाइज उसे बार बार रिपीट कराई और एवलिन ने डिस्कवर किया कि वो अपनी सारी सेंसेस को लगा के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से वो सारी की सारी उनको सुन पा रही है, समझ पा रही है, सबको फील कर पा रही है म्यूज़िक बीट्स को. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. उसने पाया कि वो अपने दिमाग से, अपनी बॉडी से साउंड्स और वाइब्रेशन को फील कर पा रही है. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. बाकी सब तो उसकी सच्ची उसकी मेहनत का नतीजा निकला, हार्ड वर्क की बात थी. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स. और फिर उसने पीछे देखने से इनकार कर दिया, उसने पीछे नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा. शी टूर टू द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 उसने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लिया, एक बैंड ज्वाइन कर लिया जो कि यूनाइटेड किंगडम के लिए था. एंड तब वो सिर्फ 16 ईयर्स की थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. उसने डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना के रहेगी. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक and scored one of the highest marks in the history of academy. उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया और सबसे ज़्यादा मार्क्स उसने अचीव किए. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. और उसने बैंड से धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस में परफॉर्म करना शुरू कर दिया. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. और 3 साल के पूरे होते होते उसने बहुत सारे अवार्ड्स जो थे वो प्राप्त कर चुकी थी, कैप्चर कर चुकी थी. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट. और इन सब चीज़ों के लिए एवलिन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसको इतनी ज़्यादा अचीवमेंट जो थी वो प्राप्त होगी. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. एवलिन के माने तो अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप डेफिनेटली वहाँ पहुँचोगे. एंड शी गोट राइट टू द टॉप. और वो बिल्कुल ऊंचाइयों को छुआ उसने. द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. एंड शी गोट राइट टू द टॉप. सबसे ऊंची जगह पर पहुंची. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर. सॉट आफ्टर का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा फेमस होना. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस हुई वो मल्टी परकशनिस्ट बनी. उसको बहुत सारी वो परकशनिस्ट बनी तो उसे बहुत ज़्यादा ड्रम बीट्स और सारी बीट उसको तबला बीट करना में उसको मास्टरी प्राप्त हुई. विद अ मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट. नॉट ओनली दिस, वो 1,000 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने लगी. एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल. अब उसका जो स्केड्यूल था वो भी इतना ज़्यादा हैक्टिक हो गया कि उसे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था. आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ क्लास. So tomorrow we will continue the chapter. Till then I am sending you a worksheet. Solve that to check your listening skills. Thank you. Stay safe. Take care.